Good morning, guys. Okay, we'll wait for 2-3 minutes. Let others join. Then we'll start with our last chapter of first unit, first module, that is about computer network. Okay, so that we will start today. So total, I hope we have 5 modules, and out of 5 modules, I guess so. Ki today, if it is possible, I don't think it is possible, but yes, of course, today we will try to cover up most of the topics from this chapter number 4, that is about the computer network. Okay. एंड फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, दैट इज़ ऑन मंडे. मंडे आई होप सो, or else okay, you will get time, no? Saturday is there, Sunday is there, so you can do the preparations. So Monday we will be having one test, and test will be on first 3 chapters. Keep in mind, आज का चैप्टर छोड़ दो, लेकिन पहले जो 3 चैप्टर्स अपने हो चुके हैं उसके ऊपर यू विल बी हैविंग फर्स्ट क्लास टेस्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम. सो जो भी अभी तक गूगल क्लासरूम जिसने ज्वाइन नहीं किया है उनको बोलो, आपके फ्रेंड्स रहेंगे उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए. assignments will be uploaded on the Google Classroom today itself. I hope so. मैं आज ही सर करूँगा. आपका वॉल्यूम बहुत स्लो आ रहा है. स्लो आ रहा है वॉल्यूम. अभी आवाज़ आ रहा है क्या? यस सर. ओके, सो ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है. सो आज आपके लिए मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, होप सो, गूगल क्लासरूम पे. जब भी मैं अपलोड करूंगा आई विल पुट अप अ मैसेज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो रिगार्डिंग द असाइनमेंट, एंड यू विल बी हैविंग आई गेस 2-3 नहीं 4 days, चलो, till 28 or 29 you need to submit that particular assignment. Now for assignment writing, whatever study material you want, everything I have uploaded on the Google Classroom. अरे यार, अब ये बारिश भी आ रहा है, सो व्हाट आई कैन डू एल्स. यस, यू आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली. सर बीच बीच में आपका स्लो हो जाता है आवाज. सो व्हाट आई कैन डू नाउ गाइज. थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा आपको आवाज़ कम सुनाई दे रहा है. सो लेट्स सी. So I hope almost 48 students have joined. So we should start with our lecture. Okay. ज़रा भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर आप मुझे बोल देना, सो दैट वी कुड स्टार्ट विद दिस. मतलब मैं थोड़ा सा कुछ जगह वगैरह चेंज कर सकूँ. Okay, now we are actually going to start with the topic that is about the computer network. But before that, we should know some basic concepts regarding the computer network. क्योंकि computer network, ठीक है, हम लोग computer network के बारे में देखेंगे क्या है computer network, why we need to learn there that particular computer network का topic, that particular thing we are going to see. Okay, but before that, for computer network, that is computer network का meaning क्या है, that is नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट करो, दैट मीन्स इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर. अब ये आपको क्यों लगता है, why there is a need to connect or interconnect the computers? So obviously for the communication. So for that reason we are going to see some of the basic concepts regarding the data communication first, and then we will move on to the our topic that is about the computer network. Okay, so just let me talk with you all that is about the data communication. Now in today's world, we all in day to day life we all do this particular thing, that is either we do call, we have a chat with our friends on mobile phones through SMSs or WhatsApp messages. We do have that is calling system is there. That means what we are doing,
we are actually communicating with each other using a particular device. अब यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सिलेबस के हिसाब से हमें क्या करना है? येस, ऑब्वियसली वी यूज़ मल्टीपल डिवाइसेस फॉर द कम्युनिकेशन. एज यू कैन सी मोबाइल फ़ोन्स आप यूज़ कर सकते हो, देन कंप्यूटर्स आर देयर, देन टैब्स आर देयर. अब और भी ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनका यूज़ आप कम्युनिकेशन के लिए करते हो, बट मेनली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कंप्यूटर. सो डेटा कम्युनिकेशन इज़ वॉट? सो डेटा कम्युनिकेशन का मीनिंग इज़ that is transferring a data from one place to another place. That is known as a data communication. Now if you consider our example, that is I am taking your lecture right now, okay? So this is the best example of data communication. Yes, am I right? As you can see, I am taking your lecture. That means we are connected with each other. So मैंने एक लिंक जनरेट किया, आपको सेंड किया, आपने उसके थ्रू ज्वाइन किया. Now we are in a session, we are having a session, and where I am and you all are connected with each other. And now what we are doing? We are transferring a data from one place to another. That means whenever I am taking a lecture, I am transferring some data, I am transferring some knowledge from my side to your side. That is the what we can call it as data communication. So data communication is just not revolves around the data, it is the transfer of data from one place to another place, and multiple devices you can use for data communication, as you can see on the screen. So what are the components important for the data communication? So जब भी आप communication करते हो तो कौन से ऐसे components important होते हैं? तो obviously as you can see on the screen also, just इसको मैं थोड़ा सा पीपीटी को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसका, सो यू कैन क्विकली सी. सो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स है उसमें ऑब्वियसली दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हमेशा रहेंगे, एज यू कैन सी ऑन द टू एंड्स, दैट इज सेंडर एंड रिसीवर. सो सेंडर विल बी द वन हु विल सेंड द मैसेज, रिसीवर विल बी द वन हु विल रिसीव द मैसेज. अब इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, आपको ये सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये है क्या. सो इन आवर केस वी बोथ आर सेंडर एंड रिसीवर. whenever I am taking a lecture, I am giving you some instruction, then in that particular case I can be a sender and you are receiving that particular instruction, so you can be a receiver. So sender and receiver, these are the two important components of data communication. हमेशा लगेंगे ही लगेंगे. अगर सेंडर एंड रिसीवर नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन होगा ही नहीं. बट अलॉन्ग विद दैट और भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो इम्पॉर्टेंट है. ऑब्वियसली उसमें से सबसे तीसरा कंपोनेंट जो आता है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मैसेज. अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग भी ज्वाइन हो चुके हो. जस्ट वी विल इमेजिन कि मैं सेंडर हूँ एंड आप रिसीवर हो. नाउ द थिंग इज़, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं चुप बैठा हूँ. आप भी कुछ बोल नहीं रहे हो, आप भी चुप बैठे हो. We are just connected to each other and we are not doing anything, we are not transferring anything. That means अगर मैसेज ही नहीं जा रहा है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? And for that reason, this is the third important component of data communication, that is about the message. So sender is also important, receiver is also important, and yes, the message. आप जब तक ट्रांसफ़र कुछ नहीं करते तब तक कम्युनिकेशन होगा कैसे? And hence message is the third important component of data communication. Now along with that, अब चलो ठीक है, सेंडर भी है, रिसीवर भी है, मैसेज भी है, बट वो मैसेज जब मैं पास कर रहा हूँ, नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, इन आवर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आई एम ट्रांसफरिंग सम इंफॉर्मेशन, बट ये इंफॉर्मेशन आपके तरफ, आपके पास कैसे आ रहा है? सो उसके लिए वन मीडियम इज़ देयर. सो इन दिस केस एज यू कैन सी, मीडियम कौन सा है? दैट इज़ हम लोग मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग इंटरनेट, वी आर यूजिंग वन प्लेटफॉर्म दैट इज़ गूगल मीट. दैट मीन्स कैन आई से, यहाँ पे जब तक वो गूगल मीट ये प्लेटफॉर्म आप यूज़ नहीं करोगे,
सेम लिंक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक यू आर नॉट बीन एबल टू रिसीव द मैसेजेस सेंड बाय मी. That means whenever we are going to do the communication and whenever we are going to pass the message, तो वो मैसेज को ट्रैवल करने के लिए आपके पास a medium is required, and that particular thing is known as a transmission medium. So you can see these are the four important components of data communication. That is sender जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है, एंड अ मीडियम. सो मीडियम कैन बी वायर्ड मीडियम, दैट इज वायर के थ्रू आपको आता है. फॉर एग्जांपल अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ तो यू आर लिसनिंग टू माय वॉइस, तो मे बी आप वायर टेक्नोलॉजी आप हेडफोन्स यूज़ करके सुन रहे हो, ठीक है, तो मैसेज उसमें से आपको आ रहा है. वायरलेस भी आप यूज़ कर सकते हो. सो मल्टीपल डिफरेंट मीडियम्स आर देयर. उसके दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होते हैं, दैट इज़ वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया. वो आगे जाके हम लोग और डिटेल में देखेंगे. एंड ये अपार्ट फ्रॉम दिस फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर आप ऊपर देखोगे तो दोनों साइड पे आपको और एक कंपोनेंट दिखेगा, एंड दैट इज़ प्रोटोकॉल. सो प्रोटोकॉल इज़ व्हाट, आप अगर देखोगे तो वहाँ पे लिखा है, देखो, रूल 1, रूल 2 एंड सो ऑन. सो प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट अ रूल्स फॉर द कम्युनिकेशन. अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एंड अगर रूल्स ही नहीं है आपके कम्युनिकेशन के लिए, कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर ही नहीं है, देन ऑल्सो अ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. वाई? तो आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल. जस्ट इमेजिन कि चलो अब मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, मैसेज इज ऑल्सो देयर, मतलब मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ, ट्रांसमिशन मीडियम इज ऑल्सो देयर, आपके तरफ मैसेज भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है. बट द थिंग इज, अगर मैं जस्ट इमेजिन इफ आई एम टेकिंग योर लेक्चर इन अदर लैंग्वेज, से स्पेनिश लैंग्वेज, देन व्हाट विल हैपन, या फ्रेंच लैंग्वेज, then will you able to get all the data which I am transferring to you? नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा. yes, am I right? then what will happen? अब इसको हम कम्युनिकेशन बोल सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि मैं मेरे साइड से सिर्फ डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ. यू आर नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डेटा. You are just receiving it, but you won't be able to understand that particular part, and because of that you can see यहाँ पे communication, successful communication we cannot say, and for that reason there should be some rules, there should be some controlling factors. अगर अभी मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा तो प्रोटोकॉल के बारे में, तो इट विल बी लाइक कि चलो मैंने ना एक फ़ाइल आपको सेंड कर दिया मेल के थ्रू, सबको मैंने मेल कर दिया एंड एक फ़ाइल मैंने सेंड कर दिया. नाउ द थिंग इज़, वो फाइल जो है वो किसी अलग सॉफ्टवेयर में बना के मैंने आपको सेंड कर दिया, एंड दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यू डोंट हैव ऑन योर मशीन, ऑन योर मोबाइल. then will you be open to that particular file? You will be able to open that file. आप ओपन कर सकते हो क्या वो फाइल? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं. सो अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है, आपने वो फाइल ओपन ही नहीं किया, तो वो कम्युनिकेशन हुआ क्या? यस, कम्युनिकेशन हुआ ये नहीं. दो आई हैव ट्रांसफर्ड वन डेटा टू यू, मैंने एक फाइल आपको ट्रांसफ़र किया है, लेकिन आपको ओपन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर ही नहीं है आपके पास अवेलेबल. देन हाउ वी कैन कॉल इट एज अ कम्युनिकेशन? तो इसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते. एंड फॉर दैट रीज़न वेन एवर वी नीड टू इस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल शुड बी देयर, रूल्स शुड बी देयर. अगर रूल्स नहीं रहेंगे ना, तो कोई भी कैसे भी कम्युनिकेशन करेगा, कोई भी कैसे भी कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करेगा, एंड देन इट इज़ अप टू द रिसीवर. रिसीवर को सिर्फ डेटा मिलते रहेगा, बट ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर डेटा. एंड फॉर दैट रीज़न all these 5 important components which you are seeing on the screen are the most important components for effective data communication. So just एक बार फिर से हम लोग recap कर लेते हैं कि कौन से components हैं. I will show you sender, receiver, message, transmission media and protocol. These are the 5 important components for data communication. फिर से आप देख सकते हो, सेंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं सोर्स.
सो ये सेंडर क्या होता है, जो डेटा को प्रोड्यूस करता है, जो डेटा को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज अ सेंडर. सो यू कैन सी, जब आप कॉल करते हो आपके फ्रेंड को तो यू बिकम द सेंडर, आप सेंडर बनते हो एंड वो रिसीवर बनता है. बट इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप ही सेंडर बनो, वो भी सेंडर बन सकता है, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं तो इट इज़ नॉट द थिंग लाइक कि आप सिर्फ बोलते हो, आपका फ्रेंड भी आपसे बात करता है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ कैन एक्ट एज अ सेंडर एंड रिसीवर. ओके, सो this is the concept of sender. As you can see, receiver, so the receiver is the person who gets the data, who receives the data. So जो previous example देखा उसमें जब आपने कॉल किया एंड आपके फ्रेंड ने कॉल जब पिक किया तो आपका फ्रेंड बनेगा रिसीवर. ओके, so these are the two important concept and you can see here also, until and unless, आप नीचे डायग्राम देख सकते हो, sender is giving some message to the receiver and receiver is there. If receiver is not going to give you a feedback, रिसीवर अगर कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा उसके ऊपर, देन इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ सेम थिंग, अपना जो लेक्चर हो रहा है उसमें भी 10 बार मैं आपको बोलता हूँ कि वेन एवर आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ कमेंट. ये 10 बार मैं बोलता हूँ. क्यों? क्योंकि जब तक आपके तरफ से मुझे फीडबैक नहीं आएगा तब तक मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि आपको जो भी मैंने ट्रांसफ़र किया है डेटा, या जो भी मैं आपसे लेक्चर में शेयर कर रहा हूँ वो आपको समझा है या नहीं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फीडबैक शुड बी देयर. सो इसीलिए मैं हमेशा आपको पूछते रहता हूँ, प्लीज़ कमेंट करो कि आपको समझा है नहीं समझा है. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर फीडबैक. आप रिप्लाई करते हो ना, फीडबैक. सो जब तक सेंडर, देखो सेंडर मैसेज का देने का काम कर रहा है बट रिसीवर हैज़ टू रिएक्ट. सो रिसीवर जब उसको रिप्लाई करेगा, फीडबैक देगा, देन ओनली इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Then next one is about the message. Yes, what is the message? So message can be in the form, message is basically considered as a particular information or a data. It can be in the form of say text message हो सकता है, numbers आप include कर सकते हो, picture messages हो सकते हैं, audio messages हो सकते हैं, video messages हो सकते हैं, और a combination of all these particular things can be included inside the message. So message is basically a information or a data which we transfer from one place to another place. Okay, next one, that is about the transmission media. आप देख सकते हो दो टाइप के ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखाए हैं आपको देखने के लिए. सो यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑल द वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया इज देयर. अब ये जो है ये वायर किसके है, तो मोस्टली मैंने ये वायर जो चूज़ किए हैं वो कौन से हैं, जो कंप्यूटर कनेक्शन के लिए आप यूज़ करते हो, दोज आर द वायर्स. सो यू कैन सी द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ व्हाट, दैट इज़ वेन एवर वी पास अ पर्टिकुलर मैसेज, अ फिजिकल पाथ इज रिक्वायर्ड टू कैरी दैट मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. वन चैनल शुड बी देयर जिसके थ्रू आप मैसेज को पास करोगे, and that particular thing is considered as a transmission media. इसमें दो टाइप्स होते हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज़ गाइडेड मीडिया, जिसी को हम बोलते हैं वायर्ड, मतलब वायर. ओके, एंड सेकेंड दैट इज़ अनगाइडेड मीडिया, दैट इज़ वायरलेस. सो उसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक ये दिखाया है, दैट इज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दैट इज़ वायरलेस. ओके, सो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया आर देयर. अब यहाँ पे आगे थोड़ा गाइडेड मीडिया के बारे में है डिटेल, तो ये डिटेल जो है वो हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे. बिफोर दैट व्हाट वी शुड नो, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू. बट आई होप यहाँ तक, दैट इज़ ये जो डेटा कम्युनिकेशन एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है, ये एक टॉपिक, ये आई होप आपको समझा रहेगा. यस, एक जन को ही समझा, सिर्फ इतने सारे लोग हैं कॉल में. ओके, चलो ठीक है, चलो, थैंक यू. नाउ
what we will start with, that is our chapter number 4, that is computer network. So as you can see on the screen, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे. सो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट एग्जैक्टली अ कंप्यूटर नेटवर्क इज. So as we all know, network is what? It is like what we can call it as a web through which all the computers are connected to each other. Okay, so normally computer, when it comes to the computer network, it is like interconnected computers. Now we need to see what are the advantages of computer network. कि computer network हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, तो उसके advantages क्या है. So you can see number of advantages are there. सबसे पहला देखो, कंप्यूटर नेटवर्क का इतना मीनिंग समझ लो. कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या? ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वायर्ड टेक्नोलॉजी और वायरलेस टेक्नोलॉजी. दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सो नेटवर्क में सब कंप्यूटर्स आर देयर and they are interconnected with each other through this networking system. That is the meaning of computer network. So what are the advantages of computer network? So as you can see, yes of course, जब सब computers एक दूसरे से connected है, that means what we can do, we can do the file sharing. आप file share कर सकते हो from one computer to another computer. You can do resource sharing, तो आप रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हो. सो इट विल बी लाइक कि समझो अपना, अगर आपने तो अपना कॉलेज का लैब देखा नहीं है, आई होप सो. अगर आप लैब देखोगे या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर आप कभी कभी जाते हो, फॉर एग्जांपल चलो आप किसी साइबर कैफ़े में गए, तो वहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स आर देयर एंड उनको ऑपरेट करने के लिए वन सिंगल सर्वर इज़ देयर, दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ऐसा होता है कि कोई सर्वर का जो हार्ड डिस्क है, वही हार्ड डिस्क बाकी के भी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. सो रिसोर्स आल्सो वी कैन शेयर यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. सो रिसोर्सेज कौन से? यस, ये तो ऑब्वियसली एग्जांपल आपने देखा रहेगा, बहुत बड़े बड़े शॉप में जब आप जाते हो, जहाँ पे आप प्रिंटिंग के लिए जाते हो, कुछ आपको प्रिंट आउट एंड ऑल निकालना है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल कंप्यूटर्स आर देयर एंड ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन सिंगल प्रिंटर. ये भी आपने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया रहेगा या देखा तो रहेगा ही रहेगा कि जितने भी कंप्यूटर्स है, इवन साइबर कैफ़े का ही बात ले लो, आप अलग अलग पीसी पे बैठते हो एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ प्रिंट आउट, तो वहाँ पे आपको जो ओनर होता है वो बोलता है कि आप वहाँ से प्रिंट दे दो, इस प्रिंटर पे प्रिंट आ जाएगा. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर प्रिंटर इज कनेक्टेड टू ऑल द कंप्यूटर्स. How is it possible? This is possible because of computer network only. So yes, you with the help of computer network, what we can do, file sharing आप कर सकते हो, resource sharing आप कर सकते हो, even we can share the databases also. So databases, for example आपके PC पे कोई database है, कोई डेटा आपने स्टोर करके रखा है, that particular data also you can share with the other computer. सो डेटाबेसेस भी आप शेयर कर सकते हो. इवन नेक्स्ट वन इज दैट इज अबाउट द रिमोट एक्सेस. यस, रिमोट एक्सेस. नाउ मल्टीपल टूल्स आर देयर फॉर रिमोट एक्सेसिंग. आई होप आपको भी मालूम रहेगा. एनी डेस्क करके एक वेबसाइट है, तो एनी डेस्क दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यू कैन इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर एंड जो भी दूसरा कंप्यूटर है उसके पास भी वो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर रहेगा. सो बाय यूजिंग दैट एनी डेस्क सॉफ्टवेयर व्हाट आई कैन डू इज़, फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में मैंने वो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया एंड आपके डेस्क में भी वो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में भी वो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर अगर है, तो हम दोनों जब साथ में वो स्टार्ट करेंगे एनी डेस्क सॉफ्टवेयर, एंड जब मैं आपका आईडी डालूंगा तो आई विल बी एबल टू सी यूर डेटा, यूर स्क्रीन, यूर कंप्यूटर ऑन माई लैपटॉप. आपका जो डेटा है ना, आपका जो पूरा कंप्यूटर जैसे दिखता है, पूरा स्क्रीन अलॉन्ग विद द डेटा इनसाइड द कंप्यूटर, वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे लैपटॉप के थ्रू क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ रिमोट एक्सेस. मतलब मैं रिमोटली यहाँ पे बैठा हूँ मेरे घर पे, बट स्टिल आई एम यूजिंग यूर कंप्यूटर. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, सो ऐसे बहुत सारे टूल्स आर अवेलेबल. एनी डेस्क इज़ वन ऑफ द टूल. सिर्फ एनी डेस्क नहीं है, ऐसे बहुत सारे आप सर्च करोगे तो यू विल फाइंड मल्टीपल टूल्स.
ओके। देन इंटरनेट एक्सेस, ऑब्वियसली कंप्यूटर नेटवर्क, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट आप यूज़ करते हो फॉर ट्रांसफरिंग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एंड फॉर दैट कंप्यूटर नेटवर्क इज रिक्वायर्ड. And the last one is, that is about the fault tolerance. So by using the networks, so fault tolerance can be implemented as a guard against the accidental data loss. So usually backup of data is taken. So these are the number of advantages of having the computer network. So अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर इन कंप्यूटर नेटवर्क. जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, हम एक्सेस कर रहे हैं अलग अलग कंप्यूटर्स को. सो फॉर एग्जांपल अभी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एंड मोबाइल में इंटरनेट है, एंड व्हाट यू आर डूइंग, आप जस्ट जीमेल पे जाते हो, एक मेल सेंड करना है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कंपोज करके सेंड कर देते हो. सो दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग हियर, आप मेल सेंड कर रहे हो तो किसी कंप्यूटर के पास ही तो जा रहा है ना वो मैसेज, भले आपका फ्रेंड हो तो वो आप उस फ्रेंड को कुछ मैसेज सेंड करना है या कुछ फाइल सेंड कर रहा है तो आप ईमेल के थ्रू कर रहे हो. सो ये वायरलेसली या वायर्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑल दिस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू इंटरनेट, वी कैन कॉल इट एज. So this is the basic concept of computer network, and these are the advantages of computer network. So keep in mind, this is the most important question for this particular chapter, that is about the advantages of computer network. Next one is about the components of telecommunication. So whenever we do the telecommunication, आप जब communication करते हो over the network, तो what are the important components we will require? तो सबसे पहला वी नीड टर्मिनल. नाउ टर्मिनल्स आर द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पॉइंट्स इन एनी टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एनवायरनमेंट. सो यहाँ पे एनी ऑफ द इनपुट और आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा कैन बी क्लासिफाइड एज द टर्मिनल. सो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इन सब को आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनल्स बोल सकते हो. सो टर्मिनल्स इज़ द वन who helps you to what we can say transmit or receive the data. So मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप ट्रांसमिट करते हो, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप रिसीव भी करते हो डेटा, एंड दैट मीन्स कंप्यूटर्स बोल सकते हो, लैपटॉप बोल सकते हो, टैबलेट्स बोल सकते हो, एंड आपका मोबाइल फ़ोन, दीज ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज अ टर्मिनल. एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ अबाउट द प्रोसेसर. So this telecommunication processors always supports and control the data transmission, and ये किया जाता है with the help of some of the hardware components. उसमें से सबसे पहला component आता है that is known as NIC, that is Network Interface Card. So I will show you the image of that NIC. So this is the card which we need to install. इंस्टॉल मतलब ये सॉफ्टवेयर नहीं है, दिस इज़ द हार्डवेयर. दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर वी नीड टू प्लेस इनसाइड द CPU. सो इट इज़ लाइक अ कार्ड. कार्ड मतलब जैसे आपका लैन कार्ड होता है, अगर इंटरनेट यूज़ करना है तो वी नीड टू यूज़ दैट लैन कार्ड. यू कैन सी देयर सेकेंड वाला जो दिख रहा है ना, मॉडम, इंटरनल मॉडम इज़ देयर. सो दैट पर्टिकुलर थिंग यू नीड. उसके अलावा आप यूज़ नहीं कर पाओगे. सिमिलरली NIC इज़ देयर, जहाँ पे आप ये जो भी कार्ड्स दिखाए गए हैं, इन कार्ड्स को वी नीड टू इंस्टॉल. ये दो कार्ड्स जो है NIC एंड मॉडम इंटरनल, ये दो कार्ड्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है इनसाइड द CPU एज अ हार्डवेयर कंपोनेंट. एंड दिस इज़ द मॉडम. ये आजकल के ज़माने में तो आप देख ही सकते हो, हर जगह पे आपको ये दिखाई देंगे. ये है एक्सटर्नल मॉडम. ओके. सो ये NIC क्या है? सो इट इज़ एक्चुअली अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट विच डिज़ाइन टू अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क. सो ये अगर NIC कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट डू द कम्युनिकेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क. ओके. नाउ इट इज़ अवेलेबल इन से 8-bit और 16-bit का फॉर्मेट. एंड इन कंप्यूटर नेटवर्क ईच कंप्यूटर वेदर सर्वर और वर्क स्टेशन जो भी होने दो, whenever they need to do the communication, NIC is must. ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है ये आपको चाहिए ही चाहिए. इसके अलावा आप
communication over the computer network you cannot do only. Okay, now the next one is about the addressing system. I will just show you this part. So that is known as a MAC address. So MAC address, MAC का full form देखो क्या है, that is media access control. So this MAC address is basically a unique 48-bit number assigned to a network interface card. And इसीलिए ये जो आपका MAC एड्रेस है ना, ये आपका यूनिक आईडी होता है हर एक NIC का, हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का ये एक यूनिक आईडी होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस MAC एड्रेस, विद द हेल्प ऑफ योर IP एड्रेस, जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो ना, तो आपके मशीन को एक IP एड्रेस भी अलॉट किया जाता है. एंड फॉर दैट रीज़न यू कैन सी दीज आर द यूनिक एड्रेसेस. तो आपके पास अगर ये एक NIC है, आपके सिस्टम में NIC है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग द इंटरनेट, तो आपके मशीन को एक MAC एड्रेस एंड एक IP एड्रेस अलॉट किया गया है ऑलरेडी. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वॉट एवर यू डू ऑन द इंटरनेट इट विल बी रिकॉर्डेड कि भाई ये सिर्फ आपने किया है, क्योंकि आपका MAC एड्रेस एंड IP एड्रेस जाता है. सो वॉट एवर एक्टिविटी यू परफॉर्म, तो वहाँ पे MAC एड्रेस एंड IP एड्रेस रिकॉर्ड हो जाता है कि ये किसने किया है. एंड फॉर दैट रीज़न ओनली, अगर आपने सुना रहेगा तो साइबर क्राइम में सबसे पहला अगर कोई कहाँ पे चीटिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन चीटिंग जो होता है, तो सबसे पहला फाइंड आउट किया जाता है कि MAC एड्रेस क्या है एंड IP एड्रेस क्या है, क्योंकि दे आर द यूनिक एड्रेसेस. एंड इसीलिए फिर वहाँ पे जाके फिर क्या किया जाता है, इंक्वायरीज एंड ऑल किए जाते हैं. सो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर ऐसे नहीं है कि आप आपके घर के PC का यूज़ नहीं कर रहे हो, बट स्टिल इफ़ यू आर गोइंग टू अ साइबर कैफ़े, वहाँ पे जाके भी अगर आप ऐसे कुछ करोगे, सो व्हाट विल हैपन. सो ऑब्वियसली वो उस मशीन का जो MAC एड्रेस है, उस मशीन का जो IP एड्रेस है, दैट विल बी कैप्चर्ड एंड फिर उसका इंक्वायरी होता है. सो कीप इन माइंड, डोंट डू एनीथिंग सच थिंग्स. ओके, क्योंकि साइबर क्राइम में सबसे पहला फाइंड आउट किया जाता है MAC एड्रेस एंड IP एड्रेस. सो ये यूनिक आईडी होता है. सो कीप इन माइंड. सो फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, MAC एड्रेस इज यूनिक 48-bit नंबर. सो यू कैन सी हियर, ये देखो बाइनरी नंबर होता है. सो ये नीचे एग्जाम्पल में दिया है, देखो कितना बड़ा बाइनरी नंबर है. सो यू कैन सी 0000 सो ऑन, लास्ट में 101. सो दिस इज़ द 48-bit बाइनरी वर्जन ऑफ MAC एड्रेस. एंड इसी का और एक वर्जन है दैट इज़ हेक्साडेसिमल में उसको कन्वर्ट किया है. सो यू कैन सी दिस इज़ द यूनिक आईडी अलॉटेड टू एवरी कंप्यूटर, एवरी डिवाइस विच इज़ देयर ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क. सो कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. यस, एक मिनट. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज़ अबाउट द मॉडम. यस, अब ये मॉडम जो है इट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, that is modulator and demodulator. So modulator means converting digital signals into analog signal, and demodulator का meaning है converting analog signals into digital. So ये जो modem जो होता है ये दोनों का combination है. इसीलिए देखो MO stands for modulator and DEM stands for demodulator. So ये दोनों काम करता है. तो पहले क्या करता है, whatever signals it gets, तो पहले वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को इनटू एनालॉग सिग्नल, एंड डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल. तो दोनों काम यहाँ पे किए जाते हैं. सो ऑन सेंडिंग अ modern computers works as a modulator, where on receiving the computer modem वर्क्स एज ए डीमॉड्यूलेटर. तो सेंड, जब डेटा सेंड करना है तो जो मॉडम है वो मॉड्यूलेटर के जैसा काम करता है. जब डेटा को आप रिसीव करते हो तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल वर्क एज ए डीमॉड्यूलेटर. सो इन द केस ऑफ दिस मॉडम का वर्किंग अगर आप बोलोगे तो हियर व्हाट वी गेट इज अ डिजिटल सिग्नल. that is device is continuously working on this type of digital signals only. Okay, so modems are definitely required to send the data with ordinary telephone lines, because data is in digital form but our telephone lines are in analog form.
जब भी अपना डेटा जब आप पास करते हो, सो दैट पर्टिकुलर डेटा विच इज़ रिटन ऑन द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ डिजिटल डेटा। बट अगर जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो एंड टेलीफोन लाइन का यूज़ करके इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, देन व्हाट विल हैपन, सो आपका जो डिजिटल डेटा है उसको वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग डेटा, क्योंकि टेलीफोन लाइंस जो है, वायर्ड टेक्नोलॉजी जो है, उसको डिजिटल डेटा समझ में नहीं आता। सो फॉर दैट रीज़न वी यूज़ मॉडम। सो आपका मॉडम क्या करता है, आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइंस के थ्रू पास करता है एंड जो भी रिसीवर है उसके तरफ सेंड कर देता है। जब रिसीवर, वो आपका फ्रेंड जिसको आपने मेल किया है, वो जब रिसीव करेगा तो वो एनालॉग सिग्नल्स रहेंगे। सो वहाँ पे मॉडम का डी मॉड्यूलेटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा एंड वो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द मॉडम। next device which we use, that is about the multiplexer. now ये multiplexer जो है, this is also a particular device which we use to carry the simultaneous data transmission from many terminal, as you can see on the screen also। आप स्क्रीन में देखोगे मल्टीप्लेक्सर, देखो अलग अलग टर्मिनल से मॉडम इज ऑल्सो प्लेस। तो जो डेटा ट्रांसमिशन है उसको हैंडल करने का काम ये मल्टीप्लेक्सर करता है, दैट इज मल्टीपल टर्मिनल्स हैंडल करने का काम मल्टीप्लेक्सर करता है। सो बेसिकली अ मल्टीप्लेक्सर मर्जेस द ट्रांसमिशन ऑफ सेवरल टर्मिनल्स एट वन एंड ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, while the similar unit separates the individual transmission at the receiving end। सो मल्टीप्लेक्सर का काम ही ये है, दैट इज़ अलग अलग जितने भी टर्मिनल्स अवेलेबल है उनसे डेटा सिग्नल्स जो भी मिल रहे हैं उनको कलेक्ट करना, मर्ज करना एंड देन अगेन थ्रो देम बैक टू द रिस्पेक्टिव चैनल्स। सो जहाँ पे रिसीवर रहेगा वो अपना अपना जो भी है डेटा उसको वो रिसीव कर लेगा। दैट इज़ अबाउट द मल्टीप्लेक्सर। नाउ मल्टीपल मोर सच व्हाट वी कैन कॉल इट एज different devices are there which we use, which helps us to do the interconnection, that is network establish करने के लिए आपको help करते हैं। ऐसे बहुत सारे devices are there as you can see on the screen। इसमें से कुछ devices के बारे में already I guess आपको मालूम रहेगा, but still we will talk about all these particular devices as you can see on the screen। these particular devices are known as the inter-network processors। सो इंटर नेटवर्क प्रोसेसर्स में कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं? सो एज यू कैन सी हब इज देयर, स्विचेस आर देयर, राउटर्स, रिपीटर्स, ब्रिज एंड गेटवे। सो दीज आर द different what we can call it as processors which we use or devices which we use for establishing a computer network। सो उसमें से सबसे पहला है दैट इज अबाउट द हब। सो हब इज व्हाट? It is a port switching communication processor। I will show you the diagram of that particular thing। hub, yes, this one। so you can see here जो right hand side में जो आपको दिख रहा है that is known as a hub। so what it does, hub करता क्या है? so it basically allows sharing of the network resources such as server, LAN workstation, printer etc। तो इनको सबको शेयर करना जब है ना आपको, तो व्हाट वी डू, उसको आप कनेक्ट करते हो टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर से एक वायर कनेक्ट करते हो टू द हब एंड हब से जो वायर्स निकलते हैं वो आप अलग अलग टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हो। सो इन दैट पर्टिकुलर मैनर वी कैन डू द रिसोर्स शेयरिंग यूजिंग द हब। सो हब बेसिकली as you can see it is the device which connects with other devices and it sends the packets to all those particular devices connected to it। so that is the basic purpose of hub। so you can see जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, पिक्चर इमेज जो दिख रहा है हब का, वो आप देख सकते हो उसमें मल्टीपल पोर्ट्स आर देयर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये 8 बिट पोर्ट इज देयर। सो इसका मतलब क्या है, आप 8 अलग अलग टर्मिनल्स को इससे कनेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास सपोज 7-8 कंप्यूटर्स है एंड एक कंप्यूटर पे मैंने इंटरनेट लिया है, सो व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ हब, मैं मेरा जो इंटरनेट का कनेक्शन है ना वो हब में डाल दूंगा एंड हब के थ्रू मैं क्या कर दूंगा, वो सब अलग अलग टर्मिनल्स में मैं शेयर कर सकता हूँ।
So this is the help of what we can say, this can be done with the help of this hub device. Now one more factor is there, that is about the filtration. hub cannot filter the data. यहाँ पे दो डिवाइसेस है, एक है हब एंड दूसरा है स्विच. आप देखोगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देखोगे तो वन डिवाइस दे हैव शोन, दैट इज़ अबाउट द स्विच. जो ऊपर का पार्ट है ना उतना ही देखो, नीचे सब टर्मिनल्स दिखाए गए. ओके जो लिखा है ना देखो वर्क स्टेशन, तो कितने टर्मिनल्स है, तो 4 कंप्यूटर्स आर देयर, एक सर्वर दिखाया है उन्होंने, एंड ऑल आर कनेक्टेड टू स्विच. यस देख रहे हो ना डायग्राम सब लोग. तो वो डायग्राम में आप देख सकते हो सर्वर में जो भी डेटा है, सर्वर में जो भी फैसिलिटीज है, ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स आर कनेक्टेड टू स्विच एंड other terminals are also connected to switch. That means if my server is having the internet connection, then I will be able to use the internet connection on all those particular 4 workstation. उनके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ. सो दिस इज इन दिस पर्टिकुलर वे वी कैन यूज़ स्विच. अब ये स्विच जैसे दिख रहा है ना, वैसे ही हब भी दिखाई दे रहा है. हब एंड स्विच दोनों दिखने में सेम ही है, जस्ट द डिफरेंस इज हब जो है ना उसके पास दिमाग नहीं है एंड स्विच के पास दिमाग है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब देखो आप देख सकते हो वो डायग्राम कि सर्वर इज कनेक्टेड एंड ऑल द टर्मिनल्स आर आल्सो कनेक्टेड टू द स्विच. नाउ here what happens is when we are going to connect servers and terminals through the switch or hub, obviously we are going to pass or we are going to transfer the data from one terminal to another terminal. तो ये होता कैसे, for example if I am passing a particular data from terminal number 1 to terminal number 3, तो पहले वो डेटा कहाँ पे जाएगा, so that particular data will be sent to the switch first. क्योंकि टर्मिनल आपका किससे कनेक्टेड है, स्विच के साथ. स्विच को कनेक्ट हुआ है, स्विच के पास वो डेटा जब जाएगा तो उसके पास आएगा डेस्टिनेशन का एड्रेस. तो वो फाइंड आउट करेगा कि कौन से टर्मिनल का ये पैकेट है एंड उसी टर्मिनल को वो डेटा हैंड ओवर करेगा. सो यू कैन सी हियर आउट ऑफ 4 टर्मिनल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, 4 वर्क स्टेशन दिख रहे हैं आपको एंड 1 सर्वर इज देयर. सो वेनेवर एक कोई भी कंप्यूटर जब डेटा सेंड करता है फॉर एनी ऑफ द कंप्यूटर, तो स्विच क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है. स्विच के पास दिमाग है, वो आइडेंटिफाई करता है. क्या आइडेंटिफाई करता है, कौन से टर्मिनल के लिए ये मैसेज आया है एंड उसी टर्मिनल को वो मैसेज हैंड ओवर करता है. बट इन केस ऑफ हब, अगर स्विच के जगह पे आप हब यूज करोगे तो हब जो है ना उसके पास दिमाग नहीं है. सो व्हाट इट विल डू, सो हब क्या करता है, हब के पास जैसे ये मैसेज आएगा ना तो हब ना सभी टर्मिनल्स को सेंड कर देगा वो डेटा एंड उन टर्मिनल्स को बोलेगा क्या कि भाई आप लोग देखो आप में से किसका ये पैकेट है, जिसका है वो प्लीज़ ये पैकेट एक्सेप्ट कर लो. सो हब यहाँ पे कोई काम नहीं करता. हब जस्ट विल बी एक्ट हियर एज मैसेज पासर. हब सिर्फ क्या काम करता है, वॉट एवर मैसेज इज इनकमिंग तो उनको सिर्फ टर्मिनल्स तक पहुंचाने का काम करता है. लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन, सो जिसका मैसेज है उसके अलावा उसको तो मिल ही रहा है लेकिन उसके साथ बाकी सबको भी वो मैसेज जा रहा है. नाउ वेदर इट इज अप टू दोज पर्टिकुलर टर्मिनल्स कि वेदर टू एक्सेप्ट दैट मैसेज और नॉट. सो इसमें मे बी डेटा लॉस हो सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकता है. एंड फॉर दैट रीज़न हब, यस हब का भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता. बट आजकल अगर आप देखोगे फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, टू इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेटवर्क वी डेफिनेटली यूज़ स्विच. आई होप ये स्विच एंड हब जो है इसमें जो डिफरेंस है एंड इसका जो वर्किंग है ये आपको समझा रहेगा. यस प्लीज़ गिव द कंफर्मेशन. ओके सो प्लीज़ कीप इन माइंड अगेन आई एम टेलिंग यू हब एंड स्विच दोनों का काम क्या है, दैट इज टू सेंड द डेटा पैकेट्स टू द कनेक्टेड डिवाइसेस. बट द थिंग इज हब क्या करता है, उसी डेटा पैकेट्स को सब डिवाइसेस को सेंड करता है एंड स्विच क्या करता है, ओनली
that particular terminal that packets to which that packets is belong. तो जिस टर्मिनल का वो पैकेट है उसी टर्मिनल को सेंड करने का काम स्विच करता है, वेयर एज हब सब टर्मिनल्स को सेंड करता है एंड टर्मिनल को बोलता है कि भाई अभी तुम लोग देखो क्या करना है. ओके, नेक्स्ट वन इज अबाउट द राउटर. एज यू कैन सी मिडल वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये आपने सब जगह पे देखा ही रहेगा. सो इट बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस विच इंटरकनेक्ट्स network based on different rules or protocols so that the telecommunication message can be routed to its destination. So as a name suggests, नाम ही दिया है राउटर. so देखो ये जो जितने भी डिवाइसेस हैं ना, इनमें से कुछ डिवाइसेस जो है इनका यूज़ देखो सब डिवाइसेस का नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन. डेटा जब आप ट्रांसमिट करते हो तो उनके लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा जब ट्रांसमिट करते हो तो वहाँ पे ये सब डिवाइसेस का यूज़ होता है एंड उसमें से वन ऑफ द डिवाइस इज़ राउटर. ये राउटर जो है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है व्हेन यू यूज़ इंटरनेट. सो राउटर इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव्स एंड एनालाइज द पैकेट्स एंड देन राउट्स देम टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन. सर राउटर ये जो वर्ड है उसमें ही एक वर्ड आता है दैट इज रूट, ROUT, रूट, ROUTE. सो ये रूट मतलब पाथ. सो राउटर का काम ही वो है कि वॉट एवर पैकेट्स राउटर इज गोइंग टू रिसीव तो वो उसको एनालाइज करेगा, उसका डेस्टिनेशन क्या है वो फाइंड आउट करेगा एंड एज पर द डेस्टिनेशन उसको उस पाथ में सेंड कर देगा. सो दैट इज द वर्क डन बाय द राउटर. नाउ बेसिकली बताया कि राउटर नॉर्मली हम इंटरनेट जब यूज करते तब राउटर का यूज होता है एंड फॉर दैट रीजन राउटर्स आर रिक्वायर्ड ऑन इंटरनेट टू रीड द IP एड्रेसेस. सो जो यूनिक IP एड्रेसेस होते हैं कि कौन से कंप्यूटर से लिया है ये पैकेट आया है, सो दैट कैन बी रीड बाय द राउटर. सो IP एड्रेसेस कौन से है, कौन से IP एड्रेस को सेंड करना है, सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राउटर. Along with the router, one more is there, that is about the repeater. Repeater is also one of the device, as the name suggests, repeater. तो रिपीट करेगा. तो क्या रिपीट करेगा, तो जो सिग्नल्स आप पास करते हो ना उनको रिपीट करने का काम ये रिपीटर करता है. नाउ व्हाई देयर इज अ रिक्वायर्ड टू हैव द रिपीटर. नाउ मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, देखो एक जस्ट इमेजिन वन कम्युनिकेशन नेटवर्क इज देयर, ओके, एंड वी आर सेंडिंग अ मैसेज. मतलब मैंने एक मैसेज सेंड किया आप सब लोगों को. आप में से कोई स्टूडेंट्स जो है वो मेरे नज़दीक के एरिया में रहेंगे. यहाँ पे कोई जो है वो कलवा में रहते हैं, कोई जोठाना में है, कोई ऐरोली में है. सो यहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन जस्ट इमेजिन कोई अगर दूसरे यहाँ पे लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल अंबरनाथ, बदलापुर, यहाँ पे कोई है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए. यस, नाउ द थिंग इज व्हाट विल हैपन. सो जस्ट इमेजिन कि मैंने एक डेटा पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया सबको. तो जो मेरे नज़दीक है उनके तरफ वो डेटा पैकेट आराम से पहुंचेगा, क्योंकि मेरा जो सिग्नल मैंने सेंड किया है वो सिग्नल आपके पास आराम से आएगा, क्योंकि आपका और मेरे बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है. बट द थिंग इज जहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस इज देयर, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर एक मेल कर रहा हूँ एंड मेरा फ्रेंड जो है वो है आउट ऑफ इंडिया, देन व्हाट विल हैपन. सो वहाँ तक वो डेटा सिग्नल जो है वो पहुँचना तो चाहिए. सो फॉर दैट रीज़न व्हाट वी नीड, देखो सिग्नल जब ट्रैवल करते हैं ना ऑन लॉन्गर डिस्टेंस, तो हमको भी मालूम है, देखो हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो छोटा सा डिस्टेंस रहेगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन लॉन्गर डिस्टेंस होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, है ना. क्यों, क्योंकि हम थोड़ा थक जाते हैं. सिमिलरली जब आप सिग्नल सेंड करते हो ओवर द नेटवर्क एंड जब वो सिग्नल्स को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तब ये सिग्नल्स भी थक जाते हैं. थक जाते हैं मतलब उनका स्ट्रेंथ जो है वो कम होते जाता है एंड ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगा एंड वो जो सिग्नल है वो वहाँ पे ही गिव अप कर देगा, वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा ही नहीं. ऐसे हो सकता है. सो व्हेन इट कम्स टू द लॉन्गर डिस्टेंस डेफिनेटली व्हाट वी नीड, तो वो सिग्नल जो है वो वीक सिग्नल बनने से पहले उसको
थोड़ा सा बूस्ट करना है हमको, एंड फिर से उसको आगे के ट्रैवलिंग के लिए हमको हेल्प करना है. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल बूस्टिंग वी यूज द डिवाइस विच इज नोन एज अ रिपीटर. सो दैट्स वाई द नेम इज गिवन, दैट इज रिपीटर. ये सिग्नल को रिपीट सेंड करता है, रिपीट करने का काम करता है. सो उसको लगा कि यस अभी ये सिग्नल वीक होने वाला है, तुरंत वो क्या करेगा, उसको रिपीट कर देगा एंड उसको एक्सटेंड कर देगा, उसका लेंथ जो है वो एक्सटेंड कर देगा. सो दिस इज रिपीटर इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन प्रोसेसर दैट रीजनरेट्स द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक. तो लॉन्गर डिस्टेंस पे जब सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो जब कम होते जाता है, उसके पहले ही ये क्या करेगा, रिपीटर रीजनरेट करेगा सिग्नल को एंड फिर आगे पास करेगा. सो इन दैट वे कि सिग्नल आपका वीक नहीं होगा एंड वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा. सो दिस इज वन ऑफ द नेटवर्क इंटर नेटवर्क प्रोसेसर वी यूज. वन मोर इज देयर, दैट इज अबाउट द ब्रिज. नाउ एज नेम सजेस्ट ब्रिज. तो ब्रिज का काम क्या होता है, टू फिल अप द गैप बिटवीन टू डिवाइसेस. सो सिमिलरली यहाँ पे ब्रिज का काम क्या है, सो ब्रिज कनेक्ट्स डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क. सो जो लैन होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा बिल्डिंग है, मेरे बिल्डिंग में एक लैन है, ठीक है, दूसरा बिल्डिंग है वहाँ पे एक लैन है. तो इन दो लैन्स को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस आप यूज करते हो उसको हम बोलते हैं ब्रिज. So it connects different local area networks of same topology. It also magnifies the data transmission signal while passing the data from one LAN to another LAN. So एक LAN से दूसरे LAN पे अगर आपको डेटा सेंड करना है तो भी आप ब्रिज का यूज़ करते हो. सो ब्रिज इज़ लाइक, हम लोग जो ब्रिज का जो बेसिक आइडिया मालूम है, ब्रिज क्यों होता है, तो दो अलग अलग रास्ते हैं, उनको गैप फिलअप करने के लिए वी यूज़ दैट ब्रिज, है ना. एक जगह से दूसरे जगह जाना है, बीच में कुछ नहीं है तो हम ब्रिज का यूज़ करते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पे भी एक लैन से दूसरे लैन में अगर वी नीड टू ट्रैवल द डेटा, वी नीड टू सेंड द डेटा, देन वी यूज़ दैट पर्टिकुलर ब्रिज. एंड द लास्ट इंटर नेटवर्क प्रोसेसर दैट इज अबाउट द गेटवे. नाउ एज अ नेम सजेस्ट गेटवे. तो ये क्या करता है, तो इसका काम है गेट पे खड़े रह के क्या करना, चेक करना एंड कंट्रोल करना. So it is basically a communication processor that connects all the networks. So अलग अलग टोपोलॉजीज के जो नेटवर्क्स है उनको कनेक्ट करने का काम ये गेटवे करता है. एंड नॉट ओनली जस्ट टू कनेक्ट द नेटवर्क, बट दूसरे नेटवर्क से जब डेटा आता है तो इट विल बी लाइक अ गेट कीपर. तो वो चेक करेगा कि कौन से नेटवर्क से आया है, इज इट परमिटेड और नॉट, एंड देन ओनली वो अंदर आपके दूसरे नेटवर्क में पास कर देता है. So that's why the name is given, that is gateway. So you can see these are, as you can see here, yes, this one, these are the 6 important inter-network processors which we use for connecting or interconnecting the telecommunication networks. These are the processors basically which we use for special purpose communication. Okay, so I hope ये जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के बारे में हमने, प्रोसेसर्स के बारे में हमने जो देखा आज, सम ऑफ द डिवाइसेस विच वी हैव सीन, दैट इज़ मॉडेम, एनआईसी, मल्टीप्लेक्सर, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आज हमने देखा, एंड सम पार्ट वी हैव सीन रिगार्डिंग द डेटा कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. ये आपको समझा रहेगा? यस, जस्ट क्विकली गिव द कंफर्मेशन. Okay, chalo. So we will stop here today. Just let me take the attendance, please. And keep in mind Monday मैं वो मैसेज डाल दूंगा, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट. ठीक है, मंडे और ट्यूसडे देखते हैं हम लोग कब कर सकते हैं. बट कीप इन माइंड फर्स्ट 3 चैप्टर्स. ओके, फर्स्ट 3 चैप्टर्स